था पहले, अभी नहीं है। इनिशियली इट वाज 250, राइट नाउ अगेन दैट लिमिट इट्स क्लोज टू 100। हाँ, सो दैट इज द प्रॉब्लम। ये इनिशियली अगर ऐसा होता तो ये इशू नहीं आता, ठीक है। इससे भी इशू नहीं आता, बट वो क्या होता है कि लैपटॉप में ज्यादा इशू आता है। लैपटॉप में जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तब क्योंकि लैपटॉप सिस्टम मतलब डेस्कटॉप पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता, कॉलेज के पीसी में यहाँ पे थोड़ा हो जाता है, बट ठीक है, लेट इट बी। नाउ आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। रिकॉर्डिंग आपसे मैं शेयर कर देता हूँ, ओके, डोंट वरी। बट अगर किसी के पास लैपटॉप है या अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर है तो आप स्टार्ट करो साइड बाय साइड। ओके, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। या वी आर हियर। इज इट विजिबल टू एवरीवन? नो इश्यू विद द स्क्रीन नाउ? ओके, या सो नाउ वी कैन स्टार्ट। ओके, just 1 minute. Okay, so so to measure the linear relationship between two variable x and y, okay, Carl Pearson actually developed one coefficient, okay, which is called as the coefficient of correlation. Okay, so this you can directly calculate in Excel also. Okay, Excel में ready-made formula भी आपके पास है. Okay, just if you want to verify your answer. And so it is defined as covariance of xy upon sigma x into sigma, where this sigma x is actually a standard deviation of x, correct? And this sigma y is actually a standard deviation of y. Okay. Now this covariance is defined. So this covariance of xy is defined as 1 by n. So this is the regular definition, 1 by n summation in bracket xi minus x bar into yi minus y bar. This is the regular definition. But for calculation purpose, we need to change this formula. And so the simplified formula is 1 by n summation xi yi minus x bar into y bar. Correct? So this is in one bracket. This is in one bracket. Okay. And where if you consider this same formula, okay, just give me 1 minute here. ये नीचे का टास्क बार नहीं जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ध्यान दो अभी। So this covariance of xy in frequency distribution. Can anyone tell me what is this formula in frequency distribution? Frequency में क्या change होगा? MCQ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपको on frequency distribution, but still if you want to write this formula, क्या change होगा? This small n is replaced by capital N, correct? The total number of frequencies, and in summation you have to consider fi, xi, yi. So this is in one bracket, correct? This is in one bracket, and minus x bar into y bar. But in this case, how you calculate this x bar? How you calculate this x bar? So x bar is the arithmetic mean. So it is summation fi xi upon summation of fi, correct? And y bar is actually what? Summation of fi yi divided by summation of fi, correct? Just let me check this. ठीक है. Now okay, so and we all are aware about the formula of standard deviation of x, standard deviation of y, and so on. Okay, so I will directly explain those formulas in some examples. ठीक है, so this is the formula. तो R कैसे डिफाइन किया, रिलेशन का फॉर्मूला उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस कैलकुलेट करो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. नाउ देयर इज वन मोर रिजल्ट. ओके, इसका यूज एक्चुअली आपको नेक्स्ट टॉपिक में करना है, दैट इज नथिंग बट द रिग्रेशन. ओके, रिग्रेशन टॉपिक्स में आपको इसका एक्चुअली यूज करना है, इसलिए ट्राई टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन. So this R, that is nothing but coefficient of correlation, is lies between -1 and 1. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. R की जो वैल्यू होगी, ओके, दैट लाइज बिटवीन -1 and 1. मीन्स व्हाट, अगर आप और आपका आंसर 1.1 आ जाता है, विच इज टोटली रॉन्ग. ओके, अगर आपके R की वैल्यू से -1.2 आ जाती है, विच इज टोटली रॉन्ग. ठीक है,
तो ये इसका यूज आपको नेक्स्ट टॉपिक में करना है, मीन्स आप जिस केस में आर आपका -1 एंड 1 इस रेंज में नहीं आता है, ओके, वो केस आप डिलीट कर सकते हो, ओके, सो दैट इज देयर इन नेक्स्ट टॉपिक. सो remember this result that r is always lies between -1 and 1. Next result is what now? How you actually identify the relationship between these two variables. Okay, अभी आपने r तो कैलकुलेट किया, r एक बस एक फैक्टर है ना, एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, बट इससे कैसे आपको रिलेशन समझ में आने वाला है. So for that, this remark is there. So if r is close to 0, it means there is no relationship between the variables. है ना, अगर r की वैल्यू लाइक से एग्जैक्टली अगर आप 0 लेते हो या वेरी क्लोज टू 0, है ना, सो इन दैट केस 0.003, so this value is also very close to 0. So in that case there is no relationship between the variable. ऐसा मतलब कुछ या उन दोनों वेरिएबल में you can't identify a proper relation. ठीक है, but if r is positive, it means if so what is that relation? If r is positive, is indirectly x is directly proportional to y, means what? If one get larger, other get larger. में रिलेशन वहां पे हो सकता है उन दोनों वेरिएबल में. And if r is negative, in that case, if one gets larger or gets smaller, so that tells you what? There is inverse relation between these two variable. ठीक है, सो इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको बस उस r फैक्टर से मिलने वाली है. ओके, वेदर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेदर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, इट इज तो क्या क्या याद रखना है इस टॉपिक में? फॉर्मूला क्या है, r का फॉर्मूला, फिर कोवेरिएंस का फॉर्मूला, जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला वही याद रखो जो हमने सिंप्लीफाई किया था. स्टैंडर्ड डेविएशन का भी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको एमसीक्यूज है. रेगुलर जो फॉर्मूला है उसके ऊपर रेयरली आपको आने वाला है क्वेश्चन, या हार्डली आपको 1 मार्क फॉर्मूला बेस्ड जो एमसीक्यू होता है उसमें वो आ सकता है. ठीक है, तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई के फॉर्मूलेज. ओके, नाउ दिस आर द थ्योरी. skip this, I can directly reach to the MCQs. यहाँ पे इसमें मैंने पीपीटी में ऐड किए सारे एमसीक्यू. दिस आर दी ऑल डिफरेंट एमसीक्यूज, मतलब जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो सिमिलर पैटर्न के रहेंगे, तो इसलिए मैंने वो उन एमसीक्यूज को मैंने स्किप किया. ठीक है, अब डायरेक्टली ये मतलब इस पीडीएफ में जितने एमसीक्यूज आप पहले वो सॉल्व करो, देन कैन डायरेक्टली सॉल्व एमसीक्यूज फ्रॉम द निराली या किसी और बुक में से. एक और बुक है मेरे पास जिसके एमसीक्यूज मैं आपसे शेयर करता हूँ. ओके, वो ऑलमोस्ट सॉल्व एग्जांपल ही है. ठीक है, तो नाउ लेट मी स्टार्ट द एग्जांपल्स. ओके, कैलकुलेटर लेके बैठो सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे आपसे आंसर चाहिए, सो दैट आई कैन कवर द मोर नंबर ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, कैलसी लेके बैठो आप, अगर नहीं है तो आप कैलसी ले लो तब तक. या so the first question is what? We have given summation of xy, so this value is given. We have given the arithmetic mean of x, arithmetic mean of y, the total number of observation which are 10, and we have to calculate the covariance of xy. So what is the formula for covariance of xy? Covariance of xy is equal to, the formula is like this. This is the simplified formula: 1 upon total number of observation multiplied by summation of xi yi, या simply summation of xy. Okay, आप अपने हिसाब से याद रखो. This is in one bracket minus the arithmetic mean of x into arithmetic mean of y. Yes, just put all these values, that gives you the final answer. So 1 upon n is 10, so 1 by 10 multiplied by 1242, this is in one bracket, minus the arithmetic mean. So ये minus minus is, so I can directly consider it as a plus, है ना. So 5.1 multiplied by 10. Yes, please tell me this final value. Please do it. Tell me the final answer. So this is the covariance of xy. Okay, so that value is 73.2. ठीक है, हाँ, अभी ये भी कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूले अगर आप देखते हो तो डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर आपको करना है, ज्यादा कुछ टाइम, या बस फॉर्मूला लिखो आप पेज पे, अगर आप कहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हो ना, फॉर्मूला पेज पे लिखो और ये डायरेक्टली कैलसी में टाइप करो. ठीक है, सो दैट सेव्स योर टाइम. ये मतलब हार्डली 5-6 सेकंड का ही डिफरेंस होगा, बट दैट सेव्स योर टाइम. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर. कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला इज देयर. ओके, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? आपके पास x बार है, आपके पास y बार है, क्या मिसिंग है यहाँ पे टू कैलकुलेट द कोवेरिएंस ऑफ x y? व्हिच वैल्यू इज मिसिंग? व्हिच वैल्यू इज मिसिंग? एनीवन? x बार y बार है, आपको कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है, सो आई थिंक दिस वैल्यू इज मिसिंग, समेशन ऑफ xi yi. एंड समेशन ऑफ xi yi कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें आपको दी. दिस 3 वैल्यूज आर गिवन जस्ट टू कैलकुलेट समेशन ऑफ
एक्स वाई कैसे आप देखो, तो ये अभी आप क्वेश्चन याद रखो, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आने वाला है. सो हियर वी हैव गिवन द समेशन ऑफ x plus y whole square, and that value is around say 10 6 2 3. Okay, now this can be written as just expand this a plus b whole square, so this become summation in bracket a square plus 2ab plus b square, and which is equal to this number as it is 10 6 2 3. Now this can be written as, now I can separate the summation, so this can be written as summation of x square plus, again this 2 is constant, so that you can take outside to the summation, so 2 into summation of xy and plus summation of y square, and this number as it is 10 6 2 3. Correct. So from this you can calculate, because we have the value of summation of x square, which is 2291 plus 2 into summation of xy. The summation of y square is 3056 and equal to this 10 6 2 3 as it is. So that implies, can anyone tell me the value of summation of xy? What is this? Yes, do this and divide by 2. 2638. Okay, and that implies the covariance of xy is equal to, अभी मैं डायरेक्ट लिखने वाला, फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, 1 upon total number of observation, so there are 10 multiply by summation of xy, that value is 2638. Okay, subtract क्या करना है, the mean of x bar which is 14.7 multiply by mean of y bar which is 17, and that will be your final answer. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, प्लस B option. ओके, सो दैट्स वैल्यू इज 13.9. ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखो, क्योंकि एक और आगे क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये नहीं है, बट ये जो x प्लस वाई होल स्क्वायर से, x प्लस वाई होल स्क्वायर से मैंने समीशन ऑफ एक्स वाई कैसे कैलकुलेट किया, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, ये आगे भी मैं यूज करने वाला. ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. तो जो सिंपल है वो मैं स्किप करने वाला. सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज गिवन, standard deviation of x is given, standard deviation of y is given, just calculate r of xy. So r is called as coefficient of correlation. Okay, so r is equal to, the formula is covariance of xy upon sigma x into sigma y. Just put all these values, 25.8 upon 6 into 5. Just tell me. D option. D option. 86. Okay. Okay. Next is summation of xy is given, x bar is given, y bar is given, n is given, standard deviation of x is given, standard deviation of y is given, everything is given. Okay, आपको r of xy कैलकुलेट करना है. r का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x into सिग्मा y. तो इसमें बस आपको कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है. सो द कोवेरिएंस ऑफ xy is equal to 1 upon total number of observation multiply by summation of xy, which is 190 minus x bar into y bar, so 4 into 4, that gives you covariance of xy. And yes, anyone, can you tell me this? Option B. Okay, so now you can work on this. Okay, it's trivial. Covariance given है, sigma x भी given है, sigma y भी given है. You can, it's correct. Okay. Yeah. Next is okay. So summation of xy is given. ये याद रखो, summation of xy is given means that related with covariance. अभी आपको समझ में आया है धीरे धीरे. X bar is given, y bar is given, n is given, variance of x is given. Variance of x is given means we have given a of x, because the standard deviation of x is equal to under root of variance of x. This is the standard result. Okay, so which is equal to under root of so variance of x is 36, that is 6. So the standard deviation of x is 6, and similarly you can calculate the standard deviation of y. So variance of y is 25, which is equal to the variance of y, and that will be 25. So it is 5. So basically we have given sigma x, standard deviation of x, sigma y, that is standard deviation of y. We have we can calculate covariance using this, जो ऊपर मैंने explain किया था. ठीक है, तो सारी चीज आपके पास रेडी है, तो just calculate r. Do this. मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट. Okay, very good. So C 0.8. ठीक है. So next question is here you have to the correlation coefficient for this data. So basically आपको R calculate करना है.
ओके, और सारी चीजें आपको गिवन है। ये क्वेश्चन एक बार थियरी में भी आया था, ठीक है। ओके, सो आर इज इक्वल टू व्हाट, द कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। वन बाय वन सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इट इज वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स वाई, it is given 2160 minus x bar into y bar. ओके, तो x bar भी कैलकुलेट करना होगा। सो व्हाट इज x bar? The total number of observation upon, sorry, summation of the observation, summation of x, that is summation of x xi, summation of xi divided by total number of observation. So summation of x is given, which is 140 upon n, that gives you 14. You can calculate y bar also. So y bar is equal to summation of y upon n. So that is 150 upon n is 10. So that will be 15. So here you have to just consider 14 into 15. That you can calculate. ठीक है। अभी क्या चाहिए और सिग्मा एक्स चाहिए। तो सिग्मा एक्स का एक आपके पास फॉर्मूला है, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। आई थिंक यू हैव डायरेक्टली द सिग्मा एक्स स्क्वायर, द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज अगेन व्हाट, 1 by n समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, विच इज 1980। डायरेक्ट लिखो अभी मैं, 1/10 इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दैट इज 14 होल स्क्वायर। जिनको फॉर्मूला नहीं पता मैं आगे लिख लेता हूं, 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहां से आप सिग्मा एक्स कैलकुलेट करो, ये स्क्वायर में बट आप सिग्मा एक्स कैलकुलेट करो। And sigma y square is equal to 1/10 multiplied by summation y square is I think 2465 minus 15 square. Okay, so ये भी आप कैलकुलेट करो। तो सारी चीजें अभी आपको मैंने यहाँ पे लिखी है। So do this. Can anyone tell me what is the value of r? You can perform the calculation. सबको कैलसी लेके बैठना और ये कैलकुलेशन ट्राई करने, यही तो फॉर्मूला सबको ही पता है, बट जब आप ये कैल्शियम में पुट करके आपको भी समझ में आएगा कितना टाइम आपका उसमें जा रहा है। लेटर ऑन कैन डायरेक्टली टेक जंप इन द स्टेप्स, मतलब ये मीन एक्स बार मीन वाई बार आप डायरेक्टली देख के भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। यस, एनीवन ट्राई दिस एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ आर। आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में मुझे टाइम जाने वाला है। डू इट। तब तक अगर किसी ने किया है, कोवेरिएंस की वैल्यू किसी ने फाइंड की है क्या? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या आ रही है? ओनली 6। तो ऊपर 6 आने वाला है, नीचे का आप करो। यहां से सिग्मा एक्स स्क्वायर आता है, आपको अंडर रूट लेना है, पॉजिटिव अंडर रूट। कुछ स्टूडेंट सिग्मा वाइज कैलकुलेट करो, कुछ स्टूडेंट सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स क्या आ रहा है? ऑप्शन डी, D 0.9. ओके। सो कैन चेक दिस। ओके, सो आई गॉट दिस, ठीक है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता कि थोड़ा टाइम जाने वाला है, तो आपको मतलब टाइम फॉर दिस, है ना। क्या आ रहा है? यस, ये फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या है? 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, करेक्ट। सो 1/n, n की वैल्यू क्या है? 10। सो 1/10 मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर इज गिवन, ठीक है, माइनस एक्स बार अभी हमने कैलकुलेट किया था 14 का स्क्वायर। तो ये पूरा आप कैलकुलेट करो। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है? किसी ने अगर किया है तो मुझे बोलो। यस, सिग्मा वाई स्क्वायर की बोलो यहाँ पे स्पेस से लिखने के लिए। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 21.5. 21.5। तो ये सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है। फिर आपको यहाँ से सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है, जस्ट टेक द अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है, दैट यू हैव टू राइट हियर। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज्यादातर केसेस में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपको चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आल्सो डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फॉर्मूला परफेक्ट याद रखो।
1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मतलब अराउंड 3-4 टॉपिक्स में ये सेम डेफिनेशन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, ओके, सो नाउ आई नीड टू इरेज दिस। So next question is what? You are given the following information related to the distribution comprising the 10 observations. So here we have given n is equal to 10. Okay. Next is what? X bar is given, y bar is given, summation x square is given, summation y square is given, summation of x plus y whole square is given. आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मींस r कैलकुलेट करना है। तो r का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस ऑफ x y डिवाइडेड बाय सिग्मा x इनटू सिग्मा y। ठीक है, सो 1 बाय 1 कैलकुलेशन करो। ठीक है, पहले कोवेरिएंस का कर लेते हैं, बट कोवेरिएंस करने के लिए मुझे यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई? इट इज 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अभी आपको जंप करना है, मैंने वही बोला कि रेगुलर कैलकुलेशन करके अगर आप क्वेश्चन कंप्लीट भी करते हो सो दैट विल नॉट सेव योर टाइम। और उसमें क्योंकि मैथ्स का पेपर ऐसे सेट होता है कि जहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो ही आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, टाइम उनको ही लगने वाला है जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। सो नाउ जस्ट बाय लुकिंग दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई? आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सारे चीजें दिमाग में करो। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये लेफ्ट साइड में क्या आने वाला है? समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन इसके लेफ्ट साइड में ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे क्या आने वाला है? समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन एक्स वाई प्लस समेशन वाई स्क्वायर, एंड दैट वैल्यू इज 947। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या करो? 947 माइनस 385 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 2, तो वहां से आपको डायरेक्टली समेशन एक्स वाई मिल जाएगा। बोलो क्या आ रहा है? 185. So 1/10 into 185 minus x bar is given which is 5.5 multiply by 4। तो यहाँ से आपको कोवेरिएंस मिल जाएगा। अभी सिग्मा एक्स स्क्वायर का भी आपको डायरेक्टली ओरली कैलकुलेशन करना है। सिग्मा एक्स मतलब ये, ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर पहले कैल्सियम में कैलकुलेट करो तो क्या आ जाता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर विच इज गिवन, सारी चीजें रहेगी आपके पास, ओके, एंड माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली कैल्सियम में करो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 385 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड देन टेक द अंडर रूट स्क्वायर रूट, सॉरी, ओके, तो आपको सिग्मा एक्स मिल जाएगा। ऐसे सिग्मा वाई कैलकुलेट करो, सारे वैल्यूज मुझे डायरेक्टली बोलो आर क्या आ जाता है। तो आपको बस करना क्या है? डायरेक्टली कैल्सियम में वैल्यू पुट करने और पेज पे बस सिग्मा एक्स की वैल्यू नोट करो, पेज पे बस सिग्मा वाई की वैल्यू नोट करो, और पेज पे बस कोवेरिएंस की वैल्यू नोट करो। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है। ऑल स्टूडेंट्स वेदर यू गेट दिस, सबको यही मिल रहा है माइनस 0.681। जस्ट गिव मी वन मोर कंफर्मेशन, आई गॉट आंसर फ्रॉम वन स्टूडेंट। अदर ट्राई करो, डायरेक्टली कैलकुलेट करो, सिग्मा एक्स क्या आता है, सिग्मा वाई क्या आता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या आता है, और इसमें पुट करके मुझे आंसर दो। ओके, सो द फाइनल आंसर इज माइनस 81। यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट? या ये आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करना है कैलकुलेशन? जस्ट टेल मी यस और नो, इज इट ओके? या और भी आगे रिपीट हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कैलकुलेशन आगे भी रिपीट हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन वही कि आप ये डायरेक्टली करने के अभी आपका टाइम से होगा या आपको वो yes, 1 minute. Anyone is okay now. Okay, so next question is okay, थोड़ा डिफरेंट है। r की वैल्यू गिवन है, समेशन ऑफ एक्स वाई गिवन है, सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, n कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे r की वैल्यू गिवन है, मतलब r का फॉर्मूला आपको यूज करना है। r का फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय sigma x into sigma y. That implies r is what? 0.022 is equal to, what is the formula for covariance of xy? It is actually 1/n summation of xy. Summation of xy is given, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं अभी 33799, this is in one bracket, minus x bar into y bar, but x bar is given, so 68
multiply by y bar is 62.125 divided by sigma x into sigma y. Okay, दोनों भी given है. So sigma x is 4.5 and sigma y is 64.605. So from this calculate n. करो ये कैल्शियम में कैलकुलेशन. कैल्शियम में करो आप प्रॉपर तो ही समझ में आए. डू इट. मतलब 8 आ रहा है ना, आइए मतलब ये अप्रोक्सीमेट लेना होगा. 7.9 आ रहा है बट ये नंबर है ना, इंटीजर वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसलिए ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू, सो दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्या गिवन है. सो ये मैं बोल रहा हूँ स्पेशली डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. ओके, आपको ये कैल्सी का ऑपरेशन मतलब ये सारी चीजें बहुत क्विकली आपको आनी चाहिए तो ही आपका टाइम सेव होगा. ठीक है, नहीं तो आप वन बाय वन करने की कोशिश करोगे सो इट विल टेक टाइम. ठीक है, ये देख के आपको पता होना चाहिए क्या क्या जल्दी से पुट करके आपको एक कैलकुलेशन करना है. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो. विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल. Now next, the coefficient of correlation between the variables x and y is 0.8. तो यहाँ पे r given है, so r is equal to 0.8 and their covariance means what? Covariance of x and y is 20. Variance of x is given. किसी भी स्टैटिस्टिक्स के किसी भी फॉर्मूले में वेरिएंस यूज नहीं हो रहा है, तो वेरिएंस जहां पे भी आता है डायरेक्टली उसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है. That is under root of 16. That is 4. Okay. Standard deviation of y आपको कैलकुलेट करना है, मींस आपको सिग्मा y कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो बस r का फॉर्मूला यूज करना है. r is equal to what? Covariance of x upon sigma x into sigma y. ऑप्शन B. ठीक है, so let's skip this. Yes. Okay, so that is all about correlation, coefficient of correlation. इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले. आप सारे वैरायटी के क्वेश्चन देखो. मतलब क्या क्या आता है वहां पे. सो द एक्चुअल फॉर्मूला इज r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई. तो पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आता है, फिर r कैलकुलेट करने के लिए आता है, ये सारी चीजें गिवन होगी. नेक्स्ट सारी चीजें गिवन होगी, सिग्मा एक्स कैलकुलेट करने के लिए आता है, सारी चीजें गिवन होगी, आपको सिग्मा वाई कैलकुलेट करना होगा. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन. लास्ट जो क्वेश्चन था जहाँ पे आपको n कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, दीस आर द ओनली पॉसिबल एग्जांपल्स. ठीक है. एंड नाउ जो आपको ने पहले क्लियर किया था कि कोरिलेशन से आपको बस एक रफली रिलेशन पता चलता है कि उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, बट नाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट दैट रिलेशन. ओके, एंड वो जो रिलेशन है ओके बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दैट यू कैन सो दैट रिलेशन यू कैन एज्यूम एज अ स्ट्रेट लाइन. तो बेसिकली रिग्रेशन से आप क्या करते हो, उन दोनों वेरिएबल को या उन दोनों सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आप स्ट्रेट लाइन से फिट करते हो. दैट इज कॉल्ड एज द फिटिंग ऑफ डाटा. दैट टॉपिक इज आल्सो देयर. आफ्टर दैट द लास्ट टॉपिक इज कर्व फिटिंग. कर्व फिटिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है, फिटिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास इफ यू हैव गिवन अ टैबुलेटेड डाटा, इफ यू हैव गिवन अ टैबुलेटेड डाटा मतलब आपके पास ऐसा कुछ डाटा है, इसमें x वेरिएबल है ऐसे 1 0 1 2 3, या सिंपली आप अगर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लेते हो ना, इसमें आपके पास अगर या x की जगह पे आप एक टाइम लेते हो ना, 0 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, एंड आप करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हो, x 30 देन 40 देन 60 देन 80 रैंडम अगर आप. ओके, तो ऐसा एक डाटा आपके पास अगर आ जाता है, दिस इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ एनी गिवन एक्सपेरिमेंट. ओके, सो दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ xi एंड yi. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ टैबुलेटेड डाटा. ये डाटा आपके पास है और आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ तक ये डाटा गिवन था अप टू वैल्यू 3. ओके, और क्वेश्चन क्या है, कैन यू टेल मी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y. ओके, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि एक्सपेरिमेंट अलग होता है, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकली वो वैल्यू कैलकुलेट करो, सो दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. सो कैन यू टेल मी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7. ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया.
ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये जो गिवन डाटा है इसको आपको फिट करना होगा बाय सम इक्वेशन, या सिंपली जस्ट फाइंड एन इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, दैट इज कॉल्ड एज फिटिंग ऑफ अ डाटा। इसको आपको फिट करना होगा बाय सम रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिग्रेशन में आपने वो रिलेशन क्या एज्यूम किया, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो आपको वो मतलब दैट डाटा यू हैव टू fitted using this equation that is called as the regression line, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, आपको मैं दिखाता हूँ, बट दिस इज कॉल्ड एज regression line। और and what is the use of this regression line? You can easily calculate the value of y when x is equal to 7. Okay, you can reverse this role also. अगर आपके पास x की वैल्यू 100 है, you can calculate the corresponding x also. That is the use of regression. Yeah, that is the nothing but the fitting of the data. ठीक है। तो रिग्रेशन में आपके पास आप क्या कर रहे हो, बेसिकली रिग्रेशन लाइन से आप गिवन डाटा को फिट कर रहे हो। सी दैट इज नॉट दी, दैट विल नॉट गिव्स यू द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। कभी कभी आपको एग्जैक्ट मिल भी सकती है, बट एवरी टाइम यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिटिंग ऑफ अ गिवन डाटा, है ना। कुछ मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास जो आंसर आ रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल 7 के लिए अगर द एग्जैक्ट वैल्यू इज 90, तो मे बी आपको 80 to 100 में कुछ तो नंबर मिल जाएगा, ओके। तो एक अप्रोक्सीमेट, इट्स वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज वन टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। तो रिग्रेशन लाइन से आप वो रिलेशन कंसिडर कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व फिटिंग। तो यहाँ वहां पे आपके पास, तो यहाँ पे भी आपको बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन से फिट करो, ठीक है। तो वहां पे एक और अप्रोच है स्ट्रेट लाइन से फिट करने का, एंड नॉट ओनली by a straight line, you can also fit that given data by using equation of a second degree, that is called as a parabolic equation of a second degree। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो आप इक्वेशन अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फिट दैट डाटा, ठीक है। तो ये भी चीज आप इसमें कर सकते हो, और इसके लिए भी एक्सेल में रेडीमेड फॉर्मूला है, ओके। ये मतलब ये टॉपिक्स ऐसे है ना स्टैटिस्टिक्स के, कि आपके ब्रांच में वो 110% आगे जाके रिपीट होगा। एमए में जाओ, आप गेट में जाओ, किसी भी एग्जाम में जाओ, रिग्रेशन, कोरिलेशन, दिस आर दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। 100% कभी ना कभी आपको फिर से ये टॉपिक्स लर्न करने होंगे। तो जस्ट लेट मी दिस, या so in statistical modeling, regression analysis is a statistical process of estimating the relationship amongst the variable. It means you can find that relation between two variables. The line of regression gives the best estimate, okay, best इसलिए word आ रहा है, it's not an exact thing, but you will get a best estimate for the value of one variable for some specified value of other variable। मतलब अगर आप मतलब इसका यूज आपको बेसिकली वही करना है, अगर आपके पास x की वैल्यू है तो आप y कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास y की वैल्यू तो आप x कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये करने के लिए here we have given two equation under this regression, so that first equation is called as regression line y on x। ये आपका पहला रिलेशन है, regression line y on x, and how you define that relation, y minus y bar equal to byx in bracket x minus x bar, ठीक है। So what is this byx? So it's just a factor, multiplying factor, but the formula for byx is r into sigma y upon sigma x, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अब ये देखो सारे फॉर्मूले याद किससे रखने हैं, रिग्रेशन लाइन y ऑन x में आपको y से स्टार्ट करना है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x में आपको y से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये जो फैक्टर भी है वो इसी सीक्वेंस में आता है, y ऑन x, तो यहाँ पे yx आ रहा है, ओके। और इसी सीक्वेंस में आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, r तो सब में आता है, ऊपर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, सेम सीक्वेंस आपको मेंटेन रखनी है y ऑन x में, ठीक है। Now you can simplify this formula of byx, because we know that we know the value of r, that is nothing but covariance of xy upon sigma x into sigma y. Here you can cancel this sigma y, hence it become the covariance of xy upon sigma x square, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, अगर आप स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हो, what is this byx? Can anyone tell me this? If you compare this equation with your usual straight line equation, what is this byx? हाँ, Slope. स्लोप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये स्लोप है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में आता है, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द सॉरी एमसीक्यू में, एक्चुअली एक एमसीक्यू में द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये एक एमसीक्यू है आपको आगे। सो द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज एक्चुअली byx, ठीक है।
and that slope is given by covariance of xy upon sigma x square. This is the slope. Okay, now इसको मैं और सिंप्लीफाई करने वाला हूं, है ना, क्योंकि आपको ज्यादातर यही आदत है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखने की, y इक्वल टू mx प्लस c, है ना. सो दैट m इज द स्लोप, c इज द, व्हाट इज c? c क्या है? y intercept. y इंटरसेप्ट, वेरी गुड. ओके, y एक्सिस को, हाँ, y एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है दैट इज योर c. ओके, अगर आप ये लाइन ड्रॉ भी करते हो ना, ये पॉइंट आपका c चाहिए. c पॉइंट मतलब ये 0, c होगा, बट ये c पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसे कुछ तो वो लाइन होगी. ठीक है, इफ माय स्लोप इज से -1, ठीक है, स्लोप इज 1, देन दैट लाइन इज लाइक दिस. ठीक है, यू कैन इजीली ड्रॉ दैट. ठीक है, ये पार्ट अभी नहीं है, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अभी इस फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, बिकॉज y ऑन x में लेफ्ट साइड में y आना चाहिए. So this can be written as y is equal to, मैं multiply कर रहा हूं ब्रैकेट के अंदर. So let me erase. I don't know why this taskbar is not. Just let me erase and okay. Now you can check. So y is equal to, y bar को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं. Okay. For which division? For which division? It's visible, I guess. Okay, it is visible. Okay, so please check. I can. अब एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो. ठीक है. ओके, सो नाउ आपको बस करना है क्या है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इस प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि ये भी मुझे आगे यूज करना है. ठीक है, तो आप देखो, तो मैंने क्या किया, बी वाई एक्स से अंदर मल्टीप्लाई किया, सो दैट बिकम बी वाई एक्स इंटू एक्स. अभी यहाँ पे एक और मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस एक्स बार इंटू बी वाई एक्स. ये वाई बार माइनस वाई वाई को राइट साइड में शिफ्ट करो, एंड दैट होल वैल्यू इज डिनोटेड बाय सी. जो भी रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज डिनोटेड बाय सी. सो द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज y is equal to byx into x plus c, where what is c? y bar minus byx into x bar. ये आप याद रखो. तो आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन याद रखना है या ये इक्वेशन याद रखना है, ये आपकी चॉइस है. ठीक है, बट एमसीक्यू में ये दोनों इक्वेशन आपको चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू दोनों इक्वेशन के ऊपर आता है. ठीक है, सो अगेन आई रिपीट दिस होल पार्ट. सो रिग्रेशन में दो लाइंस आने वाले, एक y ऑन x है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड जो लाइन होगी विच इज x ऑन y. दोनों लाइंस आपको सिलेबस में. ठीक है, सो y ऑन x का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू byx into x माइनस x बार. ठीक है, where byx is actually a slope which can be calculated by using the formula covariance of xy upon sigma x square. ये भी रिलेशन आप याद रखो, क्योंकि ये भी मुझे आगे यूज करना है. जो मैं चीजें बोल रहा हूँ हर एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू है. नेक्स्ट इज व्हाट, दिस कैन बी रिटन in the form of y equal to mx plus c, where m is the slope, that value is byx. तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या, if you compare with this, then you will get m is equal to byx, and what is your y intercept? So y intercept is y bar minus byx into x bar. ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ m और c डायरेक्ट कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना है. So you have to remember this formulas. Okay, so that is all about the first part. Now the next line, so that you can say it properly. Now the next line is what, the regression x on y. तो इसको बस x and y रोल को चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. सो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. मैंने बस x एंड y का रोल चेंज किया है, बाकी चीजें एज इट इज है. बी एक्स वाई ये होगा, उसमें स्लोप फॉर्मूला इज r इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y, बट वी नो द वैल्यू ऑफ r विच इज कोवेरियंस ऑफ x y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y. सो यू कैन कैंसल आउट दिस x, so that formula become covariance of xy upon sigma y square. ये भी रिवर्स में याद रखो, x on y में x से स्टार्ट करना है तो नीचे y आता है, y on x में y से स्टार्ट करना है नीचे x आता है, रिवर्स में होता है ये. ठीक है, सिग्मा x स्क्वायर नीचे, यहाँ पे सिग्मा y स्क्वायर नीचे. ओके, एंड नाउ अगेन इफ यू सिंप्लीफाई दिस, then it become x is equal to bxy into y and plus c, that is the y intercept, so that value is x bar minus bxy into y bar. तो आपको ये दोनों फॉर्म याद रखने. ठीक है, so this is called as regression y on x, this is called as regression x on y. You can't change this. मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर आपको पता है कि गिवन लाइन अगर आपकी y on x है, so you can't change this line into x on y. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिजल्ट्स आपको क्या समझ में आ रहा है, y इक्वल टू लिखते हो तो रिग्रेशन लाइन y on x,
x इक्वल टू लिखते हो, इट बिकम रिग्रेशन लाइन x ऑन y. बट कोई भी जो भी गिवन लाइन है, दैट लाइन इज आइदर y ऑन x और x ऑन y, दोनों पॉसिबल नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ. 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, x माइनस 10y इज इक्वल टू 10. ठीक है, सपोज दिस आर योर टू रिग्रेशन लाइंस. ओके, यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि विच लाइन इज y ऑन x एंड विच लाइन इज x ऑन y. कैन यू आइडेंटिफाई दैट? पॉसिबल है? यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देते समय उन्होंने मिक्स फॉर्म में दिया है. अगर ये इक्वेशन में अगर आपको ऐसे दे देता हूं ना, y इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10x, रैंडम दे रहा हूं ना कुछ भी, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाता है दिस इज y ऑन x, दिस इज x ऑन y. बट उन्होंने देते समय ऐसे रैंडम इक्वेशन दिया है आपको, so here it is difficult to identify which line is y on x and which line is x on y. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल होती है. जैसे आप यहाँ पे देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो? दिस फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज y on x, so that is y is equal to minus 2x plus 5. This can be this also can be written as x is equal to क्या होगा? x is equal to minus 1/2 times y plus 5/2. क्या मैं फिर से बोलता हूँ, ये एक पहला इक्वेशन था. मेरा क्वेश्चन क्या है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन y ऑन x है, मतलब ये करेक्ट है या ये करेक्ट है. आपको मैंने पहले क्या क्लियर किया है, whatever given line is there, it is either y on x और x on y, दोनों पॉसिबल नहीं है. मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सेम लाइन है, वो y on x भी है और x on y भी है. ठीक है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को रिजेक्ट करना है. दैट यू कैन डू बाय यूजिंग r. ओके, वहीं पे रोल आ जाता है r का. ओके, ये पहली लाइन है, इसको आप y इक्वल टू भी लिख सकते हो, आप x इक्वल टू लिख सकते हो, या सिंपली दिस लाइन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y ऑन x और कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x ऑन y. पर अभी डिसीजन आप कैसे लोगे कि इनमें से ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, या ये करेक्ट है ये रॉन्ग है, ये डिसीजन आपको कैसे लेना है? यूजिंग r. दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. अभी के लिए बस आप ये याद रखो कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगी आपको, कि कौन सी लाइन y ऑन x है और कौन सी लाइन x ऑन y है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन होल्ड पे रखता हूं, दैट यू विल सी डायरेक्टली इन द एग्जांपल, वहीं पे इजी रहेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पार्ट, या कोई और टॉपिक एक्सप्लेन करना है? यस, इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी यस और नो क्विकली. दो y ऑन x का फॉर्मूला, x ऑन y का फॉर्मूला. हाँ बोलो. हाँ, ठीक है ठीक है. ओके, सो सिंपली इसको मैं कैसे एंड करता हूँ. ठीक है, रिग्रेशन से आप उन दो सेट्स में रिलेशन कैलकुलेट करने वाले हो. रिलेशन के लिए दो फॉर्मूलेज है. एक रिलेशन होता है y ऑन x का, उसका फॉर्मूला आपको मैंने नीचे दिया है, सो आई विल नॉट गो थ्रू दैट अगेन. एक फॉर्मूला होता है x ऑन y का. ठीक है, ये दो टाइप के रिलेशन आपके पास है. अब इनका यूज कैसे करना है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द एग्जांपल. बाकी चीजें, ये कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, सिग्मा x दैट यू कैन स्किप. नाउ दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. ये समझ में आ गया तो ही थ्योरी समझ में आ गई. ठीक है, सारी चीजें ओपन रखता हूँ. I don't know what is this. ठीक है, हाँ. सो फर्स्ट क्या है, byx का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, r इनटू सिग्मा अपॉन सिग्मा x एंड bxy, these are the slopes, है ना. ये byx कौन सी लाइन का स्लोप है? y ऑन x लाइन का स्लोप है. y इक्वल टू होता है ना, ये bxy कौन सी लाइन का स्लोप है? x ऑन y का स्लोप है. x इक्वल टू जो लाइन है वो. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, अभी bxy एंड byx, यहां से आप डायरेक्टली r कैलकुलेट कर सकते हो. सो r इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ byx इंटू bxy. कैसे किया ये फॉर्मूला? आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये पे लेकर देखो ना. जस्ट टेक दिस मल्टीप्लीकेशन ऑन LHS, यू विल गेट byx इंटू bxy विच इज इक्वल टू, यहाँ पे r स्क्वायर आने वाला है, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y. तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी. यू विल गेट r स्क्वायर इक्वल टू दिस, दैट इज नथिंग बट r इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ दिस. तो पॉजिटिव अंडर रूट इज द फाइनल वैल्यू. ठीक है, हाँ. अभी यहाँ पे मतलब मैंने अभी आपको बोला कि पॉजिटिव अंडर रूट, बट ये तो आपको भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दैट वैल्यू में बी पॉजिटिव, दैट वैल्यू में बी नेगेटिव, क्योंकि बिकॉज एट द एंड r टेक्स वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1. तो ये तो क्लियर है कि r की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, बट कौन से केस में नेगेटिव होगी उसके लिए दो रिजल्ट है. सो इफ बोथ स्लोप्स आर पॉजिटिव, if both slopes are positive, r is positive. ये साइन कन्वेंशन है.
इफ बोथ स्लोप्स आर नेगेटिव देन योर आर इज नेगेटिव, उस केस में आर आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। सो ओके, ये भी जैसे इस एग्जांपल होगा आपको उस टाइम पे समझ में आएगा, अभी के लिए ये याद रखो। फॉर एग्जांपल इफ बी एक्स वाई इज -0.4, बी वाई एक्स इज अगेन -3.2, तो जो आर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3.2, तो ये अंदर पॉजिटिव बन जाएगा, तो आंसर भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही मिल जाएगा। मैं कुछ रैंडम लिख रहा हुआ, मुझे पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन है, बट सिंस दिस बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, इसलिए बाय कन्वेंशन दिस यू हैव टू कंसीडर इट एज अ नेगेटिव, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आंसर आपका पॉजिटिव आ जाता है, बट सिंस योर बोथ स्लोप्स आर नेगेटिव, so by sign convention you have to consider this r as negative. If both are positive then you have to consider this value as positive. That is the sign convention, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो मतलब क्या है कि स्लोप से आप r कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी इन दोनों लाइन का यूज क्या है, ओके। सो y on x की जो लाइन है, y on x की जो लाइन है, फॉर्मूला क्या है मैं लिख लेता हूं, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इस लाइन का यूज आपको कहां पे करना है, टू कैलकुलेट y, ओके। ये लेफ्ट साइड में y है, तो अगर जहां पे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां पे आपको y ऑन x का ही फॉर्मूला यूज करना है। सिमिलरली जहां पे आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यूज द फॉर्मूला ऑफ x ऑन y, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट रिजल्ट इज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, तो वन बाय वन हर एक रिमार्क आपका क्लियर होने वाला है। नाउ द लास्ट इक्वेशन इज व्हाट, the point x bar comma y bar. What is x bar? Mean of x. What is y bar? Mean of y, arithmetic mean of y. So that point means x bar y bar actually satisfies the regression lines. कैसे कैसे आप चेक करो ना, these are your two regression lines, these are your two regression line। अगर आप यहाँ पे x बार y बार पॉइंट पुट करते हो, मतलब x इक्वल टू x बार पुट करते हो, y इक्वल टू y बार पुट करते हो, तो लेफ्ट साइड में भी जीरो आने वाला है, राइट साइड में भी जीरो आने वाला है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी जीरो आने वाला है, राइट साइड में भी जीरो आने वाला है। इट मींस व्हाट, x बार y बार सैटिस्फाइज द रिग्रेशन लाइंस। इसके ऊपर इमीडिएटली आपको फर्स्ट एग्जांपल है, arithmetic mean of x, arithmetic mean of y, that is simply x bar comma y bar actually satisfies the lines of regression, ठीक है। ओके, अभी डायरेक्टली एग्जांपल ही देखते हैं, ये थ्योरेटिकल है तो मे बी इट विल टेक सम टाइम, सो लेट मी स्किप। Now the first question is, if two regression coefficients, okay, so those bxy and byx, these are called as regression coefficients, ठीक है। अभी उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि कौन सा कोएफिशिएंट कौन सा, तो आप रैंडम ले सकते हो। So let me take that first coefficient as bxy. Remember bxy and byx are called as regression coefficients. शायद मैं भूल गया था ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। So these two coefficients are given. So bxy is 0.16, रैंडम आप ले सकते हो। byx is 4, आप चाहो तो ये रिवर्स भी ले सकते हो, इसको 4 ले लो, इसको 0.16 करो, दैट विल नॉट इफेक्ट योर आंसर। एंड यहां से आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, r is equal to under root of bxy into byx. So what is that value? Yes, anyone? C. Okay, तो ये 0.8 आ रहा है, ये आपको पॉजिटिव इसलिए लेना है बिकॉज बोथ दिस वैल्यूज आर पॉजिटिव। अगर मैं एग्जाम में सेम क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे माइनस साइन देता हूं, यहाँ पे माइनस साइन देता हूं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये आप याद रखो, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, if both signs are negative then your option B is correct, if both are positive then only option C is correct, ठीक है। शायद है वहां पे, वेरी गुड। सो इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, डायरेक्टली बोलो मुझे आंसर कौन सा, तो ये कभी नहीं आने वाला आंसर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जस्ट टेक द अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, ऑप्शन ए, हाँ करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, दैट आल्सो यू कैन डिलीट बिकॉज आपको पता है कि r इज ऑलवेज लाइज बिटवीन, वेरी गुड, -1 and 1, कुछ है नहीं इसमें सॉल्व करने के जैसे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, मतलब byx, ये होता है स्लोप, फॉर्मूला क्या है, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, सो r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज दिस, x ऑन y r sigma x upon sigma y, option E. So it's a trivial question.
अभी ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ जगह पे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, क्या क्या फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो यहाँ पे उन्होंने ही मेंशन किया कि ये लाइन कौन सी है, नहीं तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे करना है ये अभी आगे आने वाला है, अभी तक आपको ये नहीं पता हाउ यू एक्चुअली आइडेंटिफाई विच लाइन इज y ऑन x एंड विच लाइन इज x ऑन y। ओके, दैट इज इट इज देयर, ये आगे आने वाला है। बट यहाँ पे उन्होंने ही दिया है कि y ऑन x जो लाइन है वो बेसिकली क्या है, 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 एंड x ऑन y जो लाइन है वो बेसिकली क्या है, 40x माइनस 18y माइनस 214 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, आपको क्या कैलकुलेट करना है, हियर वी हैव टू फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब आपको कैलकुलेट करना है x बार एंड y बार। कैसे, कैन यू टेल मी रीजन, केस किया कैसे? बिकॉज रिजल्ट क्या था, दिस पॉइंट x बार कॉमा y बार, ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस। x बार y बार एक्चुअली सैटिस्फाइज रिग्रेशन लाइंस। मींस व्हाट 8x बार माइनस 10y बार। ओके, अभी 66 को मैं आगे ले लेता हूं, इज इक्वल टू माइनस 66 एंड 40x बार माइनस 18y बार इज इक्वल टू 214। अभी डायरेक्टली कैलसी में इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दैट फाइनल वैल्यू। कैलसी में आप इजीली 2/2 सिस्टम सॉल्व कर सकते हो, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर बिकॉज x बार y बार सैटिस्फाइज रिग्रेशन लाइंस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या था? जस्ट ऑप्शन सी। आप वर्कआउट करो, अदर स्टूडेंट्स प्लीज solve this system on calculator, then only we'll get that correct answer. Okay, and there is one more question related with this only. ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी मैंने लिया था वैसे ही है। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन गिवन है आपको। ठीक है, आपको x बार गिवन है, y बार गिवन है। x बार इज 2, y बार इज -3। तो आपको यहाँ पे लैम्बडा एंड म्यू कैलकुलेट करना है और आपको रिजल्ट क्या पता है, x बार y बार satisfies the regression lines। means what 9x बार plus y बार minus lambda is equal to 0 and 4x bar plus y bar is equal to mu. So just put the values of x bar and y bar, that gives you the final answer. So 9 into x bar is what, 2 plus y bar is -3, that will be lambda, and 4 into 2 minus 3 is equal to mu. So which option is correct? A. Option A. तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में कौन सा रिजल्ट आपने यूज किया, दैट x बार y बार एक्चुअली सैटिस्फाइज द रिग्रेशन लाइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी ये देखो, the line of regression y on x. Okay, so let me erase this because so that I will get some space. Okay, so the line of regression y on x, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली दिया, ये अगर गिवन नहीं होता ना आपको कि ये y on x की लाइन है, x on y की लाइन है, so that will increase your calculation. Okay, उससे कैलकुलेशन इंक्रीज होता है। Okay, so y on x की लाइन क्या है, 8x minus 10y plus 66 इक्वल टू 0। और थोड़ा स्पेस देके मैं नीचे लिख लेता हूँ, x on y की लाइन क्या है, 40x minus 18y minus 214 इक्वल टू 0। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, r कैलकुलेट करना है। तो r का फॉर्मूला तो आपको पहले ही पता है, r इज इक्वल टू bxy इंटू byx। मीन्स व्हाट, आपको क्या चाहिए, bxy का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज bxy, स्लोप ऑफ विच लाइन, स्लोप ऑफ x ऑन y लाइन, एंड byx इज व्हाट, स्लोप ऑफ y ऑन x लाइन। ठीक है, तो ये y ऑन x से आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, y ऑन x से आपको क्या मिलने वाला है, फ्रॉम दिस यू विल गेट byx, करेक्ट, एंड x ऑन y से आपको क्या मिलने वाला है, x ऑन y से आपको क्या मिलने वाला है, bxy मिलने वाला है। अभी कैसे, कैन एनीवन टेल मी हाउ यू कैलकुलेट दैट?
नाउ यू कांट चेंज दिस, यू कांट चेंज दिस। अगर आपने इस रोल को चेंज किया, यू विल गेट टोटली रॉन्ग आंसर। जैसे मैं वही बोल रहा हूँ, y ऑन x की लाइन है तो वहां से आपको बी वाई एक्स ही कैलकुलेट करना है। x ऑन y की लाइन है तो वहीं से आपको बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट चेंज दिस रोल। अभी बी वाई एक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपको y ऑन x का एक और फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, दो फॉर्मूलेज है। ओके, एक फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बट इंस्टेड ऑफ दिस आप इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म याद रखो, विच इज y इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स, है ना, प्लस सी। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। तो सिंपली करना क्या है, गिवन इक्वेशन को y इक्वल टू लिखो। बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, गिवन इक्वेशन को y इक्वल टू लिखो और x का कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करो। तो इसको y इक्वल टू लिखना है, y इज इक्वल टू, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। तो ये मैं क्या करता हूँ, -10 इसको मैं राइट साइड में लेता हूँ, तो आई विल एडजस्ट दैट साइन ऑल्सो। तो ये जाएगा राइट साइड में, वहां पे होगा 10y, 10 से डिवाइड करना है, विल गेट 8/10 x प्लस 66/10। इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है कैसे किया है? फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y क्यू कैलकुलेट किया है, क्योंकि y इक्वल टू लिखने के बाद जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज माय बी वाई एक्स। एंड जब आप नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हो विच इज x माइनस एक्स बार इंटू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, तो यहां से x का जो फॉर्मूला था दैट इज बी एक्स वाई इंटू एक्स, सॉरी, इंटू वाई प्लस सी, या सिंपली x इक्वल टू लिखो, गिवन इक्वेशन को x इक्वल टू लिखो, एंड इन दैट केस द कोएफिशिएंट ऑफ y का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इसको x इक्वल टू लिखना है, इज इक्वल टू 18/40। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है, प्लस 214/40। पहले मुझे ये बोलो, इज दिस क्लियर और नॉट अदर स्टूडेंट्स? क्या सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? एक्स ऑन वाई की लाइन है, वहां पे एक्स इक्वल टू लिखना है। वाई ऑन एक्स की लाइन है तो वाई इक्वल टू लिखना है। वाई इक्वल टू लिखने के बाद एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज बी वाई एक्स, सीक्वेंस में याद रखो, बी वाई एक्स। एक्स इक्वल टू लिखने के बाद वाई का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज बी एक्स वाई। यू कांट चेंज दिस वैल्यूज। ओके, इसको इसको एक्स इक्वल टू लिखने, मतलब अगर आपने इसको एक्स इक्वल टू लिखा, इसको वाई इक्वल टू लिखा, दैट इज टोटली रॉन्ग। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे भी, ठीक है। नाउ कैलकुलेट दी बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है। बी वाई एक्स इज, लेट मी टेक अ पेन अगेन, या सो बी वाई एक्स इज 8/10, दिस वैल्यू इज 8/10 एंड पी एक्स वाई इज 18/40, 18/40। ठीक है, तो सिंपली आप बस आपको करना क्या है, y ऑन x लाइन से y इक्वल टू लिखो, x का कोएफिशिएंट दैट इज बी वाई पी वाई एक्स। x ऑन y लाइन से x इक्वल टू लिखो, y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज बी एक्स वाई। अभी नाउ जस्ट टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर एंड टेक द अंडर रूट। क्या आंसर आया? 0.6. 0.6। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। ठीक है, अभी मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ जहां पे चेंज करते हो तो क्या होगा, जैसे कि ये अभी क्वेश्चन है। नाउ प्लीज फोकस हियर, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यही एक क्वेश्चन है जो रिग्रेशन में आपको बाद में भी डिफिकल्टी आपको इसमें आने वाली है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, डायरेक्टली रिग्रेशन लाइंस गिवन है। सो हियर वी डोंट नो विच लाइन इज एक्स ऑन वाई, विच लाइन इज वाई ऑन एक्स, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता नहीं कि कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स की है एंड कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई की है। ठीक है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट आर इन दिस केस। ओके, मैं दोनों केसेस कंसिडर आपके सामने रखता हूँ, आपको ही डिफरेंस समझ में आएगा। okay sorry, y on x, x on y, so here also we don't know, and r आप इस केस में भी कैलकुलेट करो अभी। हाँ, तो आपका ऑब्वियस क्वेश्चन क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट लाइन है यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे ये गिवन ही नहीं है कि ये लाइन y on x की है या x on y की है। इफ दिस लाइन इज y on x आई कैन राइट y इक्वल टू दैट पार्ट। अगर ये x on y की लाइन होती तो मैं x इक्वल टू लिख लेता वहां पे, पर अभी यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि वेदर दिस लाइन इज x on y और y on x। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करता। अगर आपको नहीं पता है तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी पे वर्कआउट करना होगा। सो फर्स्ट आई विल राइट दिस एज y इक्वल टू समथिंग। तो पहले y इक्वल टू समथिंग मतलब y ऑन x, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, y इज इक्वल टू -9x + 15।
ठीक है, हाँ ये हो गई, इसको मैंने y इक्वल टू लिखा है, सो हियर आई एज्यूम दिस, तो फर्स्ट केस ऑब्वियसली क्या होगी, इसको y ऑन x एज्यूम करो, तो ऑब्वियसली इसको क्या एज्यूम करना होगा, x ऑन y। आपको पता है एक को अगर y ऑन x करते तो सेकंड ऑटोमेटिकली x ऑन y बन जाएगा, फिर बाद में मैं इसको इसका रोल चेंज करने वाला हूँ, इसको y ऑन x, इसको x ऑन y चेंज करने वाला हूँ। पहले इस केस पे वर्कआउट करते हैं, इसको y ऑन x एज्यूम करो, इसको x ऑन y एज्यूम करो, तो इसको मैंने y इक्वल टू लिखा, अब इसको मुझे ऑब्वियसली फिर x इक्वल टू लिखना होगा, सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये -1/4 टाइम्स y प्लस 5/4, ठीक है। हाँ हाँ, अभी इस केस में r कैलकुलेट करते हैं, बोलो r की वैल्यू क्या होगी, हाँ करेक्ट, ओके, सो -9 मल्टीप्लाई बाय -1/4, दोनों निगेटिव है, तो आपको आंसर निगेटिव ही लेना होगा, -1.9 ना, करेक्ट है, 1.5, ठीक है, -1.5। हाँ, अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो r होता है ना, दैट r इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो इसका मतलब जो आपका पहला सिलेक्शन था वो टोटली रॉन्ग है, मतलब ये जो आपने पहले सिलेक्शन किया था विच इज टोटली रॉन्ग, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो फर्स्ट लाइन है ये बन जाएगी आपकी x ऑन y की लाइन, तो ये आपकी x ऑन y की लाइन होगी, तो इसको मुझे x इक्वल टू ही लिखना होगा, तो x इज इक्वल टू -1.9y प्लस 15/9, एंड इसको मुझे y ऑन x लेना होगा, सो y इज इक्वल टू -4x प्लस 5। अभी इस केस में आप r कैलकुलेट करो और वो भी मुझे बोलो क्या है, -1.9, ये माइनस लेना होगा बिकॉज ऑफ द माइनस साइन, 0.663 ना, हाँ, अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे माइनस साइन नहीं है, तो ये मिस्टेक है बुक में कुछ ऑप्शंस में, बट यू हैव टू सिलेक्ट दैट ओनली, बट एक्चुअली फ्रॉम द साइन कन्वेंशन इट मस्ट बी नेगेटिव, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, सो दैट इज अ मिस्टेक, ठीक है। हाँ तो ओके, तो ये से आपको जाना होगा, कभी कभी हो सकता है आपको फर्स्ट स्लॉट में करेक्ट आंसर मिलेगा, या कभी कभी आपको ये समझ में आएगा कि अरे पहले स्लॉट में तो मैंने रॉन्ग किया था, तो ये करेक्ट होगा, ओके, इज दिस क्लियर, पॉसिबिलिटी वर्कआउट करना होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उसमें आर की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, मतलब आर की वैल्यू इस रेंज में नहीं रहेगी, इट इज आइदर क्रॉसेस 1 और इट आइदर क्रॉसेस -1, इसके आगे ही वो शिफ्ट होगी, एंड दैट यू हैव टू डिलीट, इसको डिलीट करके डायरेक्टली इस पे वर्कआउट करो, तो मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है दैट इज 100% y ऑन x, है ना, जो आपकी फर्स्ट, सॉरी ये रिवर्स लिखा ना मैंने, ये x ऑन y, ये लिखते समय रॉन्ग हो गया, बट दैट यू कैन चेंज। ये होगा ही ना, ये पॉजिटिव ही रहेगा सारे केसेस में, यू आर इन एवरी एग्जांपल आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर का कैलकुलेशन पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि यहाँ पे ये केस है ही नहीं सर, ऐसी केस कभी नहीं आती जहाँ पे बी एक्स वाई पॉजिटिव है एंड बी वाई एक्स निगेटिव है, वाई, ये केस कभी नहीं आने वाले रियल में, वाई, बिकॉज वी डोंट नो दी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, इसलिए आपको कोई भी एग्जाम्पल आने दो, उस एग्जाम्पल में बी एक्स वाई एक तो पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव या केस कभी नहीं आने वाली, मतलब क्या है, सारे कैलकुलेशन में सारे, अभी ये केस तो नहीं आने वाली, तो इसके अपोजिट केस भी नहीं आने वाली, ओके, इसका मतलब सारे एग्जांपल में आप अभी इस केस पे देखो आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट साइन कन्वेंशन क्या है, व्हाट इज अवर साइन कन्वेंशन, इफ बोथ आर पॉजिटिव टेक इट पॉजिटिव, बट इफ बोथ आर निगेटिव, अगर वो पॉजिटिव भी आ रहा है तो आपको उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है, दैट इज द साइन कन्वेंशन, इज दिस क्लियर, तो पॉजिटिव आने ही वाला है, ओके, यहाँ पे एमसीक्यू में ये एक्चुअली बुक की मिस्टेक है, आपको मैंने पहले क्लियर किया, अगर आपको ये एग्जांपल थ्योरी में आता है ना, तो कंपलसरी आपको यहाँ पे -0.663 ही लिखना होगा, अब ये मिस्टेक हो सकती है फाइनल एग्जाम में भी, ठीक है, बिकॉज फ्यू फैकल्टीज आर फॉलोइंग दिस मे बी, बट फ्यू फैकल्टीज आर नॉट फॉलोइंग दिस, बट आप याद रखो, आपको मैंने बोला कि अगर चलो नहीं माइनस साइन आ रहा है तो रिलेटेड भी आप पॉजिटिव पे टिक करके आगे जाओ, ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट, बट ये आंसर एक्चुअली करेक्ट नहीं है, आपका माइनस ही साइन है, दैट देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल, ठीक है, वो चलो
उतना इन डिटेल में नहीं जाना है, बट ये रॉन्ग है, आपको आंसर -0.663 ही चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक पार्ट क्या है कि इन दोनों केसेस में एक केस आपके हमेशा रिजेक्ट हो जाती है, मतलब जैसे अभी यहाँ पे देखो है ना, ये केस रिजेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सेकंड केस आपका आंसर होगा, ठीक है। दोनों आंसर भी कभी नहीं आने वाले, मतलब यहाँ पे भी आर की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे भी आर की वैल्यू आ रही है, ये कभी नहीं होने वाला, एक रिजेक्ट हो जाएगी तो एक एक्सेप्ट हो जाएगी, यही पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट मी इरेज दिस थिंग, या सो हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो दिस, y ऑन x, अभी यहाँ पे क्लियरली दिया है तो इसको y इक्वल टू ही लिखना है, x ऑन y इसको x इक्वल टू ही लिखना है, वेरिएंस का कुछ रूल नहीं, मतलब ये क्या गिवन है, सिग्मा x गिवन है, सिग्मा x इज व्हाट, √9, दैट इज 3, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y कैलकुलेट करना है, मतलब सिग्मा y कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैन यू टेल मी दैट हिंट, विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, सिग्मा y कैलकुलेट करना है, सिग्मा x गिवन है और गिवन है, रिग्रेशन x ऑन y गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, बोलो, ठीक है। हाँ, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, उन दोनों में से किसी ना किसी एक फॉर्मूले से आपको जाना है, बट ठीक है, कोई भी एक फॉर्मूला फिक्स करो, मतलब अगर बी एक्स वाई का मैं फिक्स कर देता हूँ, या चलो ठीक है, मेरा इक्वेशन वही ले लेता हूँ, सो बी वाई एक्स अगर मैं फिक्स कर देता हूँ तो फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो अभी आप देखो आपको सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है, मतलब सिग्मा वाई कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए सिग्मा एक्स, सो दिस वैल्यू इज गिवन, आपको चाहिए आर, सो दैट इज नॉट गिवन, डी वाई एक्स, ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ओके। सो अभी आर कैलकुलेट करने के लिए आपको बी एक्स वाई भी चाहिए, है ना, दोनों आर के कैलकुलेशन में दोनों आ जाते हैं, so now directly by looking this, can you tell me what is the value of by(x)? अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, just by looking this equation, what is the value of by(x)? 0.8, good. And what is the value of bxy? इसको x, हाँ, 18/40, and now calculate r, I think ये क्या था, 0.6 इसमें आ रहा है क्या, बोलो r क्या आता है, take the under root of this and take the product, r बोलो क्या आता है, 0.6, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर, तो आपको सिग्मा y मिलेगा, तो थोड़ा ठीक है, ये कैलकुलेट करके आर कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे पुट करो, देन यू विल गेट दैट सिग्मा y, बोलो बोलो मुझे क्या, सारे वाले 4.9, फिर से रिपीट करो, 4 सर। 3.9 मतलब 4, ठीक है, ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। तो आपको अभी टॉपिक थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि ये सारा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, मतलब स्विच होते हैं फॉर्मूलेज, सो ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड, line of regression y on x is given, x on y is given, variance of x is given, मतलब sigma x is given, ठीक है, root of 25 that is 5, तो sigma y कैलकुलेट करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सो टेक दिस नाउ, ओके, आपको डायरेक्टली प्रीवियस टॉपिक का जो लॉजिक है वही यूज करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब r दिया है उन्होंने, r इज 0.6, sigma x is given, sigma y is given, ठीक है, मतलब टू वैल्यू है, x बार इज गिवन, y बार इज गिवन, उनका क्वेश्चन क्या, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेट करो, पहले फॉर्म देखो नीचे कौन सा गिवन है, ये अपना स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, तो चलो बोलो मुझे, पहला फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूं अगर आपको नहीं याद है, बी वाई एक्स इंटू एक्स प्लस सी होता है, वेर व्हाट इज सी, सी क्या होता है, वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, याद रखने होंगे, दैट इज द ओनली चॉइस, अभी डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो, कोई एक इक्वेशन कैलकुलेट करते मैच हो जाएगा शायद, सेकंड कैलकुलेट नहीं पड़ेगी, हाँ, बी वाई एक्स कैलकुलेट करो, सारी चीजें रेडीमेड है, बी वाई एक्स, हाँ सर, बी वाई एक्स क्या होता है, आर इंटू, दिस इज बी वाई एक्स आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, डू दिस, मुझे बोलो क्या आता है, बी वाई एक्स इज 0.8, अभी सी कैलकुलेट करो, अभी 0.8, हाँ, दो है ना, तो सी कैलकुलेट करो,
y bar minus this byx into x bar. Tell me that value. C की वैल्यू क्या है? y bar मतलब 20 minus byx means 0.8 into x bar is 10. 12 आ रहा है क्या? दिस इज 12. हो गया. जहाँ पे मैच कर रहा है उसको ही टिक करो, बाकी ऑप्शन कुछ चेक करने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे, है ना. हो गया. ऑटोमेटिक आपका सेकंड वही होगा, y कैल मैच हो रहा है तो x मैच हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द फास्ट अप्रोच, इसलिए ये सेकंड फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. ये जो, हाँ, अभी यहाँ पे नीचे का फॉर्म थोड़ा अलग है. ठीक है. यहाँ पे भी आपको सारी चीजें गिवन है. r गिवन है 0.711, sigma x is given which is 4, sigma y is given 1.8, x bar is given 5, y bar is given 4 एंड ओके, कोई भी एक लाइन में कैलकुलेट कर देता हूँ. सो y माइनस वाई बार, ये सेकंड फॉर्मूला है. सिमिलर फॉर्मूला, बस आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा गिवन है. y माइनस वाई बार इंटू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. तो अगर मैं पुट कर देता हूँ y माइनस वाई बार इज 4, बी वाई एक्स कैलकुलेट करो एंड x माइनस एक्स बार इज 5. इन दोनों पे ही फोकस करना है. हाँ बोलो, बी वाई एक्स बोलो क्या है. आइदर इट इज 0.32 और 1.58. क्या क्या है? 0. 0.31 ऐसे बोल रहे हो ना आप? हाँ ठीक है, 0.31 है, 0.2 दैट इज ऑल्सो ओके. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. तो इस क्वेश्चन में भी आप ये याद रखो, आपको दोनों इक्वेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ऐसा ऑप्शन निकालोगे जिसमें एक कैलकुलेट करने पे ही आपको आंसर मिल जाता है. ओके. तो मतलब दैट सेव्स योर टाइम, ठीक है. एंड सो इट इज सिमिलर नाउ. सो आई थिंक कैन स्किप दिस. मैं आपको बस ओरली एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई कैन इन विद इन 1 मिनट ओनली हो जाएगा ये पूरा टॉपिक. एक तो रहेगा अभी. चलो. हाँ. तो यहाँ पे भी आर गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है जिस 0.8. ठीक है. और क्या क्या गिवन है? एक्स बार गिवन है ना 10, वाई बार गिवन है 90, सिग्मा एक्स गिवन है 3, सिग्मा वाई गिवन है 12. बस ये टेबल के फॉर्म में दिया उन्होंने. स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, सारी चीजें गिवन है. ठीक है. तो आपको सेम प्रीवियस का जो लॉजिक था वो यूज करके आपको रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करना है. बट यहाँ पे फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला है, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा बहुत देखना होगा क्या क्या कैलकुलेशन आ जाते हैं. ठीक है. ये सिमिलर है, सो आई विल स्किप दिस. bxy byx is given, standard deviation of y is given, value of coefficient of correlation. तो आपको पता है कि bxy कोई भी एक फॉर्मूला आप कंसीडर करो, दैट फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. अभी क्या क्या गिवन है? bxy गिवन है. ठीक है. r आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है. उसके लिए सिग्मा वाई भी गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है. ओके. तो दो वैल्यूज अननोन है यहाँ पे. अभी दो वैल्यूज अननोन है, r एंड सिग्मा एक्स, है ना. तो आपको क्या करना होगा? एक और इक्वेशन कंसीडर करना होगा. ये देखो, ये अलग क्वेश्चन है. एक और इक्वेशन, बिकॉज देर आर टू अननोन्स मींस यू हैव टू क्रिएट टू इक्वेशन. लॉजिक देखो क्या है. इफ देर आर टू अननोन्स मींस यू हैव टू क्रिएट टू इक्वेशन. सो बी वाई एक्स इज आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. अभी सारे वैल्यूज पुट करो. फर्स्ट में क्या है? बी एक्स वाई इज 0.8411, r as it is, sigma x as it is. Just 1 minute. देखते क्या होता है. चलो. सिग्मा वाई इज 1.7916. यहाँ पे बी वाई एक्स क्या है? 4821, r as it is, sigma y is given 1.916 अपॉन, अरे आर तो कैलकुलेट हो जाएगा ना. व्हाई आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन दिस. यू कैन कैलकुलेट आर ना, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है. दो इक्वेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. सो हाँ, कोई भी एक फॉर्मूला से हो जाएगा. पहले आर कैलकुलेट करो. आर का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ, मैंने चेक नहीं किया, बी एक्स वाई बी वाई एक्स.
आर मिल जाएगा। आर की वैल्यू क्या है? 0.663 समथिंग। ओके, हाँ, तो ये सब में मैच हो रहा है, तो मुझे वो कैलकुलेट करना ही होगा। आर का फॉर्म, सॉरी, कोई भी एक फॉर्म, ये एक्स वाई आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करो और मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये ट्रिवियल है, इसमें जरूरत नहीं पड़ रही आपको, डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, नाउ okay, so for a given set of x bar y bar is given, regression coefficient y on x, इसका मतलब क्या है? b y x is given, which is 1 minus 1.5 by using line of regression y on x, the most probable value of y when x is equal to 60. okay, simply इसका क्वेश्चन क्या है कि y की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। okay, if x is 60. ओके, सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। मैंने आपको पहले क्लियर किया है, जब भी आपको y कैलकुलेट करना है, यूज इक्वेशन ऑफ y ऑन x व्हेन यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। अगर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यूज रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो y ऑन x y कैलकुलेट करने के लिए होता है, x ऑन y x कैलकुलेट करने के लिए होता है। अभी बस फॉर्मूला लिखो, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, और पुट करो सारे वैल्यूज, y मिल जाएगा। सो y माइनस y बार की वैल्यू क्या है? 27.9। अगेन यू कांट चेंज दिस। y कैलकुलेट करने के लिए y ऑन x का ही रिजल्ट यूज करना है, x कैलकुलेट करने के लिए x ऑन y का ही रिजल्ट यूज करना है। बी वाई एक्स क्या है? वो भी गिवन है माइनस 1.5। x की वैल्यू गिवन है 60, x बार की वैल्यू गिवन है 53.2। डू इट। ओके, 17.7। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये सिमिलर है। ओके, हो गया। यही लास्ट क्वेश्चन में वो दिखा था, नो नीड टू एक्सप्लेन दैट पार्ट। लास्ट क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, y गिवन है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार का फॉर्मूला यूज करो। तो x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, सारे वैल्यू रेडीमेड है, बस पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ द ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक दैट आई कैन कवर नाउ। एक्चुअली आज ही टारगेट था। ओके, नाउ साइड बाय साइड प्लीज पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स फॉर द अटेंडेंस। प्लीज पुट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। दिस इज द थियरी अटेंडेंस, तो आपकी अटेंडेंस कंसिडर होगी एक्चुअल लेक्चर में। दिस इज 2 hours